السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم کلاس 10th کی بک جان پہچان کا چیپٹر نمبر 3 جس کا نام ہے نیکی اور بدی، جو کہ نذیر کی مشہور نظم ہے نذیر اکبر آبادی کی، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ نذیر جو ہے ریٹ کے اندر بھی نذیر سے سوال پوچھے جاتے ہیں، یا پھر یوں کہیں کہ نذیر میں جو مصنفین ہیں ان میں سے ریٹ کے اندر جو مصنفین ہیں ان میں سے ایک نذیر اکبر آبادی بھی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان کی پیدائش۔ نذیر کی پیدائش ہوئی 1740 کے اندر۔ جگہ کون سی تھی؟ جگہ تھی دہلی۔ وفات ہوئی 1830 کے اندر۔ کہاں ہوئی؟ آگرہ کے اندر۔ ایک بات آپ حضرات کو یہ بھی تھوڑی ذہن نشی کر لیجئے کہ آگرہ کا پرانا نام اکبر آباد ہے۔ اکبر آباد ہے، اسی لیے تو نذیر کو نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں، کہ نذیر سے جب کوئی ان کا نام پوچھتا تو وہ بتاتے نذیر، اور جب ان سے پوچھتا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہوں تو بتاتا اکبر آباد آگرہ، اسی لیے وہ نذیر اکبر آبادی کے نام سے مشہور اور معروف ہیں۔ چلتے ہیں آگے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام ولی محمد۔ پورا نام کیا ہے؟ ولی محمد۔ یہ بھی سوال ایک دو مرتبہ پوچھا جا چکا ہے، اور نیٹ میں بھی یہ سوال پوچھا جا چکا ہے۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے، اپنے خاندان کے ساتھ آگرہ میں آ کر بس گئے۔ نذیر عوامی شاعر ہے۔ نذیر کا لقب عوامی شاعر ہے۔ یہ بھی پوچھ لیتے ہیں بعض مرتبہ کہ عوامی شاعر کس کا لقب ہے؟ تو کس کا لقب ہے؟ نذیر اکبر آبادی کا۔ ان کی شاعری میں ہندوستانی ماحول کی عکاسی کی گئی ہے۔ انہوں نے یہاں کے موسموں، میلوں، تہواروں اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ سامنے کے موضوعات کو سیدھی سادی زبان میں بیان کرنا نذیر کی بہت بڑی خوبی ہے۔ ان کے پاس الفاظ کا غیر معمولی ذخیرہ ہے۔ وہ موقع اور موضوع کے اعتبار سے مناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں تاثیر بہت ہے۔ اب یہ چند نظموں کے نام ہیں: روٹیاں، بنجارا نامہ، مفلسی، ہولی، آدمی نامہ، کرشن کنہیا کا بال پن وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے مختلف موسموں، پھلوں اور شخصیتوں پر نذیر کی نظمیں بھی اپنی خاص پہچان رکھتی ہے، اور وہ اردو کے معروف شاعر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ان میں سے جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں جن کے بارے میں زیادہ سوال پوچھے جاتے ہیں ان کی طرف ایک بار اور توجہ ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، اور کوشش کریں گے کہ کلاس کے اندر یہ سارے سوال یاد ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو میں انڈر لائن کروں گا، آپ تھوڑا دھیان رکھیں گے۔ سب سے پہلے نام نذیر اکبر آبادی۔ پیدائش 1740 کہاں ہوئی؟ دہلی میں ہوئی۔ اوکے۔ وفات 1830 کہاں ہوئی؟ اکبر آباد۔ اور اکبر آباد آگرہ کا پرانا نام ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ ولی محمد۔ ٹھیک ہے، اصل نام ولی محمد۔ ایک نذیر کا لقب عوامی شاعر بھی ہے۔ ٹھیک ہے، لقب بعض مرتبہ پوچھ لیتے ہیں۔ اور ان کی نظموں کے نام تو روٹیاں، بنجارا نامہ، مفلسی، ہولی، آدمی نامہ، کرشن کنہیا کا بال پن وغیرہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ ایک اور چیز جو یہاں نہیں دے رکھی، نذیر کی زیادہ تر نظمیں جو ہے وہ مخمس کی شکل میں ہے۔ مخمس کہتے ہیں جس نظم کے اندر 5 بند ہوتے ہیں، 5 مصرے ہوتے ہیں۔ جس نظم کے اندر ایک بند کے اندر 5 مصرے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں مخمس۔ اور یہ بھی سوال بہت مرتبہ پوچھا جا چکا ہے۔ اب بڑھتے ہیں آگے تشریح کی طرف یا نظم کی طرف۔ تو سب سے پہلے ان کے لفظ اور معنی دیکھیں گے تاکہ
समझने के अंदर मदद मिले। अदल परस्ती, इंसाफ परस्ती। अदल कहते हैं, अदल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका माना होता है इंसाफ करने वाला। शमशीर तलवार, तबर कुल्हाड़ी जैसा बड़ा हथियार, जिसे अपनी ज़बान में बर्छी भी कहते हैं, बहुत से इलाकों में इसे बर्छी भी कहते हैं। सना कहते हैं भाला को, बाला कहते हैं ऊंचा बुलंद। दस्त बदस्ती, दस्त ये फारसी ज़बान के अंदर हाथ को बोलते हैं। दस्त बदस्ती का माना है हाथों हाथ, एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना, किसी चीज़ का एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचाना भी दस्त बदस्त के माना में, दस्त बदस्ती के माना में होता है। ठीक है। नान आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, माना रोटी। गर्क करना आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, माना डूबना। नहरनी कहते हैं नाखून काटने का आला, जिसे अपनी ज़बान में हम कहते हैं नाखून तराश। ठीक है, नाखून तराश कहते हैं। अब चलते हैं नज़म की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़म का नाम है नेकी और बदी। इसका खुलासा देखते हैं, या फिर यूँ कहें इसका मरकज़ी ख्याल देखते हैं। तो इसका मरकज़ी ख्याल ये है कि अल्लाह ताला दुनिया के अंदर नेकी का बदला नेकी से, बुराई का बदला बुराई से देते हैं। आदमी के साथ दुनिया के अंदर वही होता है जैसा वो दूसरों के साथ व्यवहार करता है, दूसरों के साथ मामलात करता है। तो चलते हैं आगे। वैसे इस नज़म के अंदर ज़्यादा मुश्किल अल्फाज नहीं है, ज़्यादा तशरीह की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ एक्सप्लेन कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। है दुनिया जिसका नाव मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। नाव, नाव से मुराद है यहाँ नाम। ठीक है, दुनिया से मुराद दुनिया। शायर कह रहे हैं ये दुनिया ऐसी बस्ती है जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बस्ती है, गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। शायर कह रहे हैं इस दुनिया के अंदर हर वक्त झगड़े उठते रहते हैं, अदालतों के अंदर इंसाफ के लिए केस चलते रहते हैं, अदालतें भरी पड़ी हैं। अगर मस्त करे तो मस्ती है, अगर कोई शख्स इन फितना फसाद से बच जाए तो उसके लिए मस्ती ही मस्ती है, और पस्त करे तो पस्ती है, अगर इनमें कोई मुलविस हो जाता है तो उसके लिए फिर घाटा और खसारा है, कोई छुटकारा नहीं है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। शायर कह रहे हैं कि यहाँ कुछ देर नहीं, यहाँ फैसले होने के अंदर ज़्यादा देर नहीं लगती। इंसाफ और अदल परस्ती है किसके यहाँ? अल्लाह के यहाँ। ठीक है, मुराद है कि अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले हैं, अदल को पसंद करने वाले हैं, अदल परस्त हैं, और अल्लाह ताला ऐसे ही करते हैं। फिर नीचे वाले मिसरे में कह रहे हैं इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। यहाँ जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा, और यहाँ कोई मामला उधार नहीं है, यहाँ हाथों हाथ का सौदा है। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसका भी मान मिले, तो फिर उसको भी मान मिले। शायर कह रहे हैं कि जो दूसरों की इज्जत करते हैं उनकी भी इज्जत की जाती है, जो दूसरों का मान सम्मान करते हैं उनका भी मान सम्मान किया जाता है। जो पान खिलाए पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले। शायर कह रहे हैं जो दूसरों को पान खिलाता है उसको भी पान खिलाया जाता है, और जो दूसरों को रोटी देता है तो उसको भी नान दी जाती है, मुराद उसको भी रोटी दी जाती है। नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले। शायर कह रहे हैं अगर कोई दूसरों का नुकसान करता है तो उसका भी नुकसान किया जाता है, और अगर कोई दूसरों पर एहसान करता है तो उसके साथ भी एहसान का मामला किया जाता है। तो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। शायर कह रहे हैं इस मिसरे के अंदर जो जैसा दूसरों के साथ करेगा उसके साथ वैसा ही मामला किया जाएगा। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले या सौदा दस्त बदस्ती है। इसकी तशरीह हम ऊपर करके आ चुके हैं, वही तशरीह यहाँ हो जाएगी। जो पार उतारे औरों की उसकी भी नाव उतरनी है।
शायर कह रहे हैं जो दूसरों की नाव पार उतारता है, दूसरों की मदद करता है तो उसकी भी मदद की जाती है। जो दूसरों की नाव पार उतारता है फिर उसकी भी नाव पार उतर जाती है। जो गर्क करे फिर उसको भी यहाँ डुबको डुबको करनी है। जो दूसरों की नाव डुबोता है, गर्क करने की सोचता है, उसकी भी नाव फिर डूबती है। और जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचता है उसको भी फिर नुकसान पहुंचाया जाता है। अल्लाह के यहाँ ये सारे मामलात होते हैं। शमशीर तबर बंदूक सना और नश्तर तीर नहरनी है, यहाँ जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है। शायर कह रहे हैं दोनों मिसरों के अंदर तो जैसा जिसके साथ करेगा वैसा उसके साथ किया जाएगा। जैसे अगर कोई तीर से वार करेगा तो उसके साथ तीर से किया जाएगा, कोई तलवार से वार करेगा तो उसके ऊपर भी तलवार से वार किया जाएगा। अगर कोई कुल्हाड़ी से करेगा तो उसके ऊपर भी कुल्हाड़ी से वार किया जाएगा। कह रहे हैं जो जैसी जैसी करनी है फिर वैसी वैसी भरनी है, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले सौदा दस्त बदस्ती है। इन मिसरों का जो है हम तर्जमा कर चुके हैं, वही होगा। जो औरों का ऊंचा बोल करे तो उसका बोल भी बाला है। शायर कह रहे हैं जो दूसरे लोगों का मान सम्मान करता है, इज्जत करता है दूसरों की, तो उसकी भी इज्जत की जाती है। जो दूसरों की बात को समझता है उसकी भी बात लोग समझते हैं। और जो दिल से इज्जत करता है तो लोग उसकी भी दिल से इज्जत करते हैं। और दे पटके तो उसको भी फिर कोई पटकने वाला है। जो दूसरों की इज्जत नहीं करता, दूसरों पर जुल्म ज्यादती करता है, बे दूसरों की बेइज्जती करता रहता है, फिर उसकी भी बेइज्जती की जाती है और उसको भी जलील और रुसवा होना पड़ता है। जुल्म खता है जुल्म खता जिस जालिम ने मजलूम ज़िबा कर डाला है, या बेजुल्म खता। शायर कह रहे हैं बेजुल्म बिना किसी जुल्म और बिना किसी खता के जिस जालिम ने मजलूम को ज़िबा कर डाला है उसके साथ क्या होगा, नीचे वाले मिसरे में बता रहे हैं फिर उसके साथ क्या होगा। उस जालिम के भी लहू का फिर बहता नदी नाला है, फिर क्या होगा, फिर उस जालिम के लहू से मुराद है लहू यानी खून। अगर किसी ने बेजुल्म खता किसी मजलूम को कत्ल कर दिया तो उस जालिम का भी नदी और नाले के अंदर खून बहता है। कुछ देर नहीं अंधेर ने इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले सौदा दस्त बदस्ती है। इनकी तशरीह कर चुके हैं, नज़ीर अकबराबादी मुसन्निफ है और लफ्ज़ और माना हम देख चुके हैं। गौर करने की बात को हम थोड़ा दिखा देते हैं आपको, आप खुद पढ़ लीजिएगा इनको, क्योंकि अगर हर एक चीज़ को डिटेल से बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और दूसरी ये बात कोई सवाल जवाब इससे नहीं बनती है, तो नॉलेज की चीज़ें हैं, हालांकि ये बहुत मेन चीज़ है, नॉलेज की चीज़ है, तो आप हजरात भी इन्हें देख लीजिए। ठीक है, ये सवाल है, 4 सवाल हैं, ये चारों सवाल हम जो है मुहिम गाइड से ही आपको करवाएंगे। फिर ये 4 मुहावरे दे रखे हैं, इनको भी हम करवाएंगे। तो यहाँ मुहावरों का जुमलों में इस्तेमाल पूछा है। अब गाइड में हम आपको दिखाते हैं, मुहिम के अंदर जुमलों के साथ इस्तेमाल के साथ साथ उन्होंने उनके मुहावरों के माना भी दे रखे हैं। 3 खालिस्तान हैं, ये भी हम गाइड से करेंगे। इनमें भरना क्या है, क्या चीज़ फिल करनी है, तो इस और फेल को फिल करना है। तो ये मुहिम गाइड है, आप देख सकते हैं आप हजरात बखूबी के साथ। ठीक है, और क्लास 6 से 12 तक मुहैया है। सवाल नंबर 1, नज़म के पहले बंद में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है। जवाब नंबर 1, नज़म के पहले बंद में दुनिया को कुछ और तरह की बस्ती बताया गया है, जो सस्तों के लिए सस्ती है और महंगों के लिए महंगी है, और यहाँ हर वक्त आपस में झगड़े होते रहते हैं और अदालतें लगती रहती हैं। बिल्कुल इजी सवाल है, फौरी तौर पे याद हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 2, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है। जवाब नंबर 2, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की मुराद है कि दुनिया में किसी भी अच्छे बुरे अमल का इंसाफ होते देर नहीं लगती, यहाँ सभी को अपने कामों का नतीजा हाथों हाथ मिलता है और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होती।
اس کا مطلب یہ ہے۔ سوال نمبر 3، کس کی ناؤ پار اترتی ہے؟ تو جو دوسروں کی ناؤ پار اتارتا ہے اس کی ناؤ پار اترتی ہے، یعنی اس کا بھی بھلا ہوتا ہے۔ سب سے ایزی کوشچن اس چیپٹر کا وہی ہے۔ تیسرا سوال، چوتھا سوال دیکھتے ہیں، ظالم کو ظلم کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ یہ بھی ایزی ہے، ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ظلم سے ہی ملتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کا بھی خون ضرور بھائی گئے اسے قتل کر دیں گے۔ جو ہم نے سوال دیکھا تھا، سوالوں کے بعد ایک سوال تھا جس میں محاوروں کا جملوں میں استعمال کرنا تھا، تو یہاں محاوروں کے معنی بھی دے رکھے ہیں مہم والوں نے، ٹھیک ہے، اور جملوں میں استعمال بھی دے رکھے ہیں۔ جیسے پہلا محاورہ جیسی کرنی ویسی کرنی، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ محاورہ تو ہم نے بہت سنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جیسا کام ویسا پھل، تو جیسا کرے گا اس کو ویسا پھل ملے گا، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی، ٹھیک ہے۔ بول بالا نام اونچا ہونا، یہ محاورے کا معنی ہے۔ جملوں میں استعمال، اچھے انسان کا ہر جگہ بول بالا ہوتا ہے۔ پار اتارنا، اس محاورے کا معنی ہے مشکل آسان کرنا۔ جملوں میں استعمال، دوسروں کی مدد کرنے والوں کی ہمیشہ ناؤ پار اترتی ہے۔ چوتھا معنی، مان رکھنا یعنی عزت رکھنا، جو دوسروں کا مان رکھتا ہے اسے بھی ہر جگہ مان ملتا ہے، یعنی ہر جگہ عزت ملتی ہے۔ ایک چیز مہم کے اندر جو مجھے سب سے اچھی لگتی ہے اور میری فیوریٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو گرامر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہندی کے لفظ بھی دے رکھے ہیں، جو عصری طلبہ کے لیے بڑے ہی فائدہ مند ہیں۔ جیسے اسم کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ اسم کو ہندی میں سنگیا کہتے ہیں، فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کو کریا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ سوال آپ خود ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور عملی کام بھی انہوں نے کر رکھے ماشاءاللہ، یہ دیکھو عملی کام بھی دے رکھے ہیں، کچھ محاورے ان کو جملے میں استعمال کرنے ہیں اور کیا کرنا ہے، اور جو ہے ان کا معنی بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔